Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. In today's video, we are going to discuss about the most important prepositions which are mostly repeated in second year paper of English. तो ये जो prepositions हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है और जो second year का पेपर होता है उस पेपर में यही वाले prepositions आए होते हैं. Okay, let's get started with the lesson. Accused, first word जो हमारा है वो accused है. He was accused of theft. तो accused के साथ जो preposition आएगा वो ऑफ आएगा. He was accused of theft. उसके बाद availed के साथ भी ऑफ लगाना है. He availed himself of the opportunity. Void of, void के साथ भी ऑफ लगाना है. He is void of wisdom, वॉकल से खाली है. Incapable of, he is incapable of doing this job. तो incapable के साथ कौन सा preposition आएगा? of. Fond of, he is fond of cooking, उसे पकाने का शौक है. Jealous of, don't be jealous of others, दूसरों से हसद मत करो. beware of pickpockets. warned के साथ भी कौन सा preposition आएगा? of. ignorant of, he is ignorant of his weakness. died of, ओके die के साथ जो preposition है वो of भी लगता है, in भी लगता है और from भी लगता है. तो died of किसी भी बीमारी से मरना, died of. he died of cholera, he died of corona. He died of hunger, he died of thirst. यानी कि बीमारी, भूख या प्यास से मरना जो होता है वो die of होता है. और die in क्या होता है? किसी हादसे में मरना. He died in a car accident. Okay, next is deprive of. The poor are deprived of their rights. गरीब लोग अपने हकूक से महरूम हैं. तो deprive of होता है. Ashamed of. He is ashamed of his deeds. वो अपने अमाल पर शर्मिंदा है. Get rid of होता है. We cannot get rid of bad rulers. तो get rid of छुटकारा हासिल करना. Remind of, he reminded me of my promise. तो remind के साथ कौन सा preposition आएगा? of. Remind के साथ of. boast of होता है फख्र करना. We should not boast of our wealth. तो boast of. तो इन वर्ड्स के साथ accused, availed, void, incapable, found, jealous, beware, warned, ignorant, died, deprived, ashamed, get rid, remind, boast, इन सब के साथ कौन सा preposition आएगा? ऑफ आएगा. ओके, आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज write in. write in. ओके, write के साथ जो preposition लगाते हैं वो in होता है. जैसे मैं कहता हूं कि नीली रोशनाई से लिखो, write in blue ink, write in black ink. ठीक हो गया. तो write in. meddle होता है दखल अंदाजी करना. डोंट meddle in my affairs, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो. डोंट meddle in my affairs. तो meddle in होता है. trust in होता है. we must trust in God. trust in God, we must trust in God. आगे है absorbed. इसके साथ जो preposition होता है वो in होता है. he was absorbed in his studies, वो अपनी पढ़ाई में मगन था. included, his name was included in the list. pride in, pride के साथ कौन सा preposition लगाते हैं? in लगाते हैं. believe in, we must believe in God. failed in, नाकाम होना, he failed in chemistry. deal in, deal in का मतलब होता है कारोबार करना. his father deals in sugar, his father deals in rice, उसका बाप चीनी का कारोबार करता है, चावल का कारोबार करता है. तो deal in होता है. died in, he died in an accident. डिटेल के साथ in लगाते हैं. प्लीज टेल मी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. तो यू कैन सी इन वर्ड्स के साथ कौन सा preposition लगाते हैं? हम in लगाते हैं. ओके, आगे देखते हैं. ओके, आगे है charged. तो charged के साथ होता है preposition with लगाते हैं. he was charged with murder, उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया. he was charged with murder. अच्छा, उसके साथ ill with होता है. ill with, he is ill with fever, उसे बुखार है. popular with, he is popular with his students. ओके, popular के साथ दो preposition लगाते हैं. एक popular with होता है और दूसरा popular in होता है. popular with लोगों में मकबूल होना, तो he is very popular with his students. अगर किसी जगह पर मकबूल होना, मशहूर होना हो तो popular in, he is very popular in this college. popular with. ओके, नेक्स्ट इज part. part के साथ भी दो preposition लगाते हैं. part with भी होता है और part from भी होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, अगर किसी शख्स से जुदा होना हो तो पार्ट फ्रॉम,
जैसे ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, या आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता। अगर किसी चीज से अलग होना, जुदा होना, तो पार्ट विद होता है। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स, ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स, इट इज ओके। आगे है एग्री, तो एग्री विद भी होता है और एग्री टू भी होता है। एग्री विद कब लगाते हैं? जब किसी शख्स से इत्तेफाक करना, जैसे आई एग्री विद अली, आई एग्री विद यू, ओके, एग्री विद। और दूसरा होता है एग्री टू, आई एग्री टू योर ओपिनियन, आई एग्री टू योर ओपिनियन। तो एग्री विद किसी बंदे से इत्तेफाक करना, और एग्री टू किसी बंदे की राय से, तजवीज से इत्तेफाक करना। आई एग्री विद यू, आई एग्री टू योर ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट इज ब्लेस्ड, ब्लेस्ड विद होता है। ही वॉज ब्लेस्ड विद अ गुड सन, ही वॉज ब्लेस्ड विद अ गुड वाइफ, ब्लेस्ड विद। ओके, नेक्स्ट इज वेक्स्ड विद और वेक्स्ड एट। वेक्स्ड के साथ विद भी लगाते हैं और वेक्स्ड के साथ एट भी लगाते हैं। देखें, वेक्स्ड विद किसी बंदे से तंग आ जाना, आई एम वेक्स्ड विद हिम, ही इज वेक्स्ड विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से तंग आ गया है। और वेक्स्ड एट होता है किसी चीज से तंग आ जाना, आई एम वेक्स्ड एट यूर बैड जोक्स, आई एम वेक्स्ड एट यूर साइलेंस, मैं तुम्हारी खामोशी से तंग आ गया। तो बंदे से तंग आना वेक्स्ड विद, और किसी चीज से तंग आ जाना वेक्स्ड एट। ओके, नेक्स्ट इज इट्स ओके, फ्यूरियस, फ्यूरियस, फ्यूरियस और एंग्री। फ्यूरियस एट, फ्यूरियस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं बेटा जी? फ्यूरियस एट होता है, एंग्री एट, फ्यूरियस एट, ही इज फ्यूरियस एट माय बिहेवियर, फ्यूरियस एट वो साउंड। अच्छा, एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशन लगाते हैं, एंग्री विद भी होता है और एंग्री एट भी होता है। एंग्री विद होता है किसी शख्स से नाराज होना, एंग्री एट होता है किसी शख्स के रवैये से नाराज होना। I'm angry at your behavior, I'm angry at your behavior, I'm angry with you, I'm angry with you. Okay, next is good at. Good at का मतलब होता है अच्छा होना, he is very good at English, he is very good at reading, he is very good at speaking English. तो good के साथ at लगाना, किसी भी चीज में अच्छा होना good at होता है, और कमजोर होना weak in, he is weak in English, he is good at English. Alarmed at होता है, he was alarmed at, alarmed at, shocked at, he was shocked at the death of his friend, shocked at. Next is give up. Give up होता है छोड़ देना, we should not give up our efforts. और look down upon, इसका मतलब ये idiom है, इसका मतलब होता है नफरत से देखना, we should not look down upon the poor. It's okay, आगे चलते हैं। Okay, next is affection for. ये जो words हैं इनके साथ हमने क्या लगाना है? Affection for. Parents have great affection for their children. Obnoxious for. Corruption is obnoxious for society. Aptitude for. Aptitude for. Sacred for होता है, sacred for. Makkah is sacred for the Muslims. Responsible for. You are responsible for the delay. Blame for. You no need to blame for misconduct. No need to blame me for misconduct. तो blame for, blame के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाना है? for. yearn for, ख्वाहिश करना। yearn का मतलब क्या होता है? yearn के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? for, ख्वाहिश करना। The young cricketers yearn for playing in the national team. Notorious for, notorious for, बदनाम होना, notorious for. ओके, यूजफुल फॉर भी होता है और यूजफुल के साथ टू भी लगाते हैं। यूजफुल के साथ वो प्रपोजिशन लगाते हैं, फॉर भी लगाते हैं और टू भी लगाते हैं। अगर मुफीद, इसका मतलब होता है मुफीद होना, जैसे दिस बुक इज यूजफुल फॉर मी, गलत हो जाएगा ये, फॉर मी नहीं होगा, यूजफुल टू मी होगा, बंदे के लिए फायदामंद होना, तो यूजफुल टू होता है, दिस बुक इज यूजफुल टू मी। अगर किसी चीज के लिए फायदामंद होना तो हम लगाते हैं फॉर। दिस बुक इज यूजफुल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, दिस बुक इज यूजफुल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। बंदे के लिए मुफीद हो तो यूजफुल टू, किसी चीज के लिए मुफीद हो तो यूजफुल फॉर होता है। लेट फॉर भी होता है और लेट के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं। ही वॉज लेट फॉर ऑफिस टुडे, आज वो ऑफिस
देर से गया, ठीक हो गया। किसी जगह पहुंचने में देर हो जाना तो लेट फार होता है, और किसी जगह से निकलने में देर हो जाना तो लेट फ्रॉम। ही केम लेट फ्रॉम द कॉलेज टुडे, ही केम लेट फ्रॉम द कॉलेज टुडे। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो वर्ड्स है, एस्पायर के साथ जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो टू होता है, एस्पायर टू, ठीक हो गया, एस्पायर टू। ट्रू, ट्रू के साथ भी टू लगाते हैं, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने वादे का सच्चा है, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। प्रीफर टू, you always prefer studies to anything else, prefer to तरजीह देना। adhere to, adhere to चिपक जाना, जैसे wet clothes adhere to the body, जो गीले कपड़े होते हैं वो जिस्म से चिपक जाते हैं, adhere के साथ टू लगाना। invite to, he was invited to the party, he was invited to the party। deaf to होता है, इसका मतलब यहाँ deaf to का मतलब होता है बेखबर होना, ठीक हो। ही इज डेफ टू हिज वीकनेस, और डेफ टू का मतलब तवज्जो देना भी नहीं होता, तवज्जो ना देना भी होता है, डेफ टू। ही रिमेन्स डेफ टू माई एडवाइस, ही रिमेन डेफ टू माई एडवाइस, उसने मेरी तवज्जो, मेरी नसीहत पर तवज्जो ना दी। तो डेफ टू का मतलब तवज्जो ना देना भी होता है, और डेफ का मतलब बहरा भी होता है। अगर बहरा की सेंस देना हो तो डेफ इन करते हैं, ठीक है, वो बहरा ही इज डेफ इन, ठीक हो गया। डेफ का मतलब क्या होता है, डेफ टू का मतलब तवज्जो ना देना, और डेफ इन का मतलब बहरा होना। जब इंसानी मजदूरी की बात करेंगे तो डेफ के साथ इन। लेम इन का मतलब होता है लंगड़ा होना, ये लेम इन वन है, वो एक टांग से लंगड़ा है। ब्लाइंड इन का मतलब होता है अंधा होना, ठीक हो गया। तो डेफ इन बहरा, लेम इन लंगड़ा, ब्लाइंड इन अंधा। तो डेफ टू का मतलब होता है तवज्जो ना देना, डेफ टू। आगे है जी अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब भी होता है तवज्जो देना, प्लीज अटेंड टू योर वर्क, अपने काम पर तवज्जो दो। होस्टाइल का मतलब होता है मुखालिफ होना, होस्टाइल टू होता है, होस्टाइल टू। मैरिड, वैसे मैरी या मैरिड के साथ हम एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। आई वांट टू मैरी हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये नहीं होगा आई वांट टू मैरी विद हर, गलत, ठीक हो गया। ही मैरिड अलीना, ही मैरिड यू कैन से स्कीना, ठीक हो गया, उसने स्कीना से शादी की। ही मैरिड स्कीना, अलीना, जो कुछ भी है, ठीक हो गया। तो मैरिड के साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते। अगर आपने इसका पैसे बनाना है तो फिर आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो। ही वॉज मैरिड टू अलीना, ही वॉज मैरिड टू। इट इज क्लियर। पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन नहीं लगाना, सॉरी एक्टिव में प्रपोजिशन नहीं लगाते, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे अली वॉज मैरिड टू शाजिया, अली वॉज मैरिड टू शाजिया, तो मैरिड टू ये एक्टिव, ये पैसिव का सेंटेंस, तो इस वजह से हमने टू लगा दिया, अदरवाइज मैरिड के साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते। ओके, लॉयल टू, वफादार, ही इज लॉयल टू हिज फ्रेंड। एग्री टू भी होता है और एग्री विद भी होता है। ही एग्रीज विद मी, ही एग्रीज टू माई ओपिनियन। किसी बंदे से इत्तेफाक करना एग्री विद, और उसकी राय से इत्तेफाक करना तो एग्री टू होता है। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। अच्छा जी, हैंकर आफ्टर होता है। एवरीबडी हैंकर्स आफ्टर मनी, पीछे भागना। टेक आफ्टर, टेक के साथ क्या लगाते हैं, आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है मुशाबित रखना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ से मुशाबित रखती है। इंक्वायर्ड आफ्टर होता है तीमारदारी करना। वी शुड इंक्वायर्ड आफ्टर आवर फ्रेंड्स, इंक्वायर्ड आफ्टर तीमारदारी करना। ओके, नेक्स्ट इज एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बाज रहना। एब्सटेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट फ्रॉम किसी शख्स से जुदा होना है, ठीक है। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और पार्ट विद किसी चीज से जुदा होना। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स। सफरिंग फ्रॉम होता है, ये सफरिंग फ्रॉम हेडेक, ये सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक। अबाइड बाय होता है पाबंदी करना, अबाइड बाय। अबाइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, बाय। ब्रेक इनटू होगा, ब्रेक इनटू। बर्स्ट इनटू, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स,
ठीक है, वो रोने लगी। तो बर्स्ट के साथ इनटू लगाना है, ब्रेक के साथ भी इनटू। द thief broke into his house last night। ओके, प्रिजाइड के साथ ओवर भी लगाते हैं और प्रिजाइड के साथ एट भी लगाते हैं, दोनों प्रेपोजिशन ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टुडेज लेसन। तो ये जो प्रेपोजिशन थे, ये वो प्रेपोजिशन थे जो बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर में रिपीटेड थे। तो आप ये प्रेपोजिशन कर लेंगे, इंशाल्लाह सेकंड ईयर के पेपर में आपका 5 नंबर का जो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you. See you in the next video.